All right, students. So let's start our lecture. Good afternoon to everyone. So first of all, we will see that what we have completed up till now. Within the subject that is 401 Information Systems, we have started with Unit 1, that is Introduction. Within this, first point was 1.1 Data and Information. Within data and information, we have seen that what is data, what is information, right? ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जिसके थ्रू हमने देखा था कि डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है. फिर हमने डेटा की डेफिनेशन देखी थी, टाइप्स ऑफ डेटा देखे थे, इंफॉर्मेशन देखी थी, that is definition of information, example of information, और डेटा और इंफॉर्मेशन किस जगह पे हम यूज कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन कि हमें रूल्स एंड रिलेशनशिप पता होनी चाहिए तो ही हम यूजफुल इंफॉर्मेशन में हम डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो मैंने आपको ये रेल रोड ट्रैक का यूज करके एक्सप्लेन किया था. देन वी हैव सीन कि हमारे पास ऐसा नॉलेज होना चाहिए, हमें प्रोसेस पता होनी चाहिए कि जिसका यूज करके हम ये डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड वी हैव आल्सो सीन द एग्जांपल ऑफ इट. After that, we have seen topic 1.2, that is information needs and benefits. Within that, first of all, we have seen characteristics of valuable information, which is accessible, accurate, complete, economical, flexible, relevant, reliable, secure, simple, timely, and verifiable. These were the characteristics of valuable information. Then we have seen information needs and benefits कि हमें information की जरूरत क्यों पड़ती है, कहाँ पे पड़ती है और उसके benefits क्या है, right? After that we have seen that what is the value of information, right? उसकी हम किस हिसाब से value कर सकते हैं या फिर किन लोगों को information की value होती है. All right. After that we have started with the topic that is 1.3 input, processing, output and feedback, within which first of all we have seen what is system in generalized way. Then we have seen which are the elements of system, components of system. After that we have seen examples of different kinds of system. So these were the examples which we have seen. And then we have seen the definition of information system. And after that we have seen the term that is what is input, what is processing, what is output, and what is feedback in terms of information system, right? So these were the things which we have already covered within our syllabus. All right. Now today we will start with the topic that is manual and computerized information system. Again, I repeat, today we will start with the topic that is manual and computerized information system. Okay. Now, what is the scenario? Information system can either be manual or it can be computerized. Because information system मतलब क्या है, हमने already देखा है that it is a set of elements कि जो हमें information को collect करने में, process करने में, store करने में और disseminate करने में काम लगता है, right? Now अगर हम मैनुअल सिस्टम की बात करें तो हमें पता है कि बहुत सारे पीपल ऐसे हैं कि जो सारी इंफॉर्मेशन का यूज करके मैन्युअली चार्ट्स एंड ट्रेंड्स ड्रॉ करके भी उसके ऊपर से डिसीजन लेते हैं, राइट? देयर आर मैनी डिफरेंट थिंग्स कि जिसका यूज करके हम स्टॉक प्राइस के डेटा ट्रैक कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि ओके लास्ट फ्यू मंथ्स के रिलेटेड या फिर लास्ट फ्यू इयर्स के रिलेटेड क्या ट्रेंड था of that particular stock price, और उसके ऊपर से एनालिस्ट जो भी पैटर्न्स है उसका यूज करके ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज द प्रोसेसिंग. एंड आफ्टर दैट दे कैन डिटरमाइन कि नेक्स्ट फ्यू डेज में या फिर नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ये स्टॉक प्राइस की कंडीशन क्या होगी, दैट इज द आउटपुट. मीन्स देर आर मैनी डिफरेंट थिंग्स स्टूडेंट्स कि हम मैन्युअली भी इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह भी वर्क कर सकते हैं, राइट? Now, obviously, there are many excellent computerized information system. For example, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मैन्युअली बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं कि मैन्युअली चार्ट्स ड्रॉ करके भी डिसीजन लेते हैं. Likewise, प्रोग्राम ट्रेडिंग होता है,
इसका मीनिंग क्या होता है कि ऐसी कंप्यूटर सिस्टम होती है या फिर ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है कि जो ये स्टॉक के इंडाइसेस है, मार्केट्स है, उसे फॉलो करते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन इट वो हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेंड्स या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरकास्टिंग करके देते हैं, या विद द हेल्प ऑफ इट हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरकास्टिंग खुद कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वीक में या फिर नेक्स्ट फ्यू डेज में ये पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा। मीन्स अब बहुत सारी स्टूडेंट्स ऐसे कंप्यूटर सिस्टम अवेलेबल है कि यहाँ पे जो सारी चीजें हमने मैन्युअली करने के बारे में सोची थी वही सारी चीजें हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द थिंग कि कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें कहाँ पे हेल्पफुल होती है। दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल। ओके ना, बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है ना वो स्टार्ट तो होती है मैन्युअल सिस्टम से, लेकिन वो एंड होती है कंप्यूटराइज सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल यूएस की पोस्टल सर्विस की बात करें, राइट, कि जो पोस्ट ऑफिस होती है कि जहां पे हम एनवलप ड्रॉप करते हैं, राइट, वो पोस्ट ऑफिस वाले क्या करेंगे, उसे शॉर्ट आउट करेंगे कि ये पोस्ट कहाँ पे जानी चाहिए, कौन से एरिया में जानी चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू इट वो पर्टिकुलर फोल्डर में वो पोस्ट रख देंगे। अब पहले क्या होता था कि ये सारी चीजें मैन्युअली स्कैन होती थी। एम्प्लॉयज क्या करते थे, जिप कोड देखते थे, उसके ऊपर से उन्हें पता चल जाता था कि ओके ये एनवलप ये पर्टिकुलर एरिया क्या है, तो वो क्या करते थे, वो एनवलप वो फोल्डर के अंदर ड्रॉप कर देते थे। बट नाउ द सेम थिंग इज डन इन अ कंप्यूटराइज्ड मैनर। किस हिसाब से, पोस्ट जो होती है, दैट इज एनवलप जो होता है उसके ऊपर बारकोड एड्रेस होता है। बारकोड एड्रेस क्या है वो तो आपको पता ही है। इट इज मेड अप ऑफ पैरेलल लाइंस। आपने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सब्जेक्ट में पढ़ा ही होगा दैट व्हाट इज बारकोड, राइट। इट इज पैरेलल लाइंस कि जिसका जो पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट होती है या फिर हम यहाँ पे ये जो पोस्टल सर्विस की बात करते हैं उसके ऊपर वो पर्टिकुलर बारकोड स्टिक किया जाता है ताकि उसके ऊपर से इजीली पता चल जाए बाय स्कैनिंग इट कि ये पोस्ट कहाँ की है। यहाँ पे एम्प्लॉयज क्या करते थे, जिप कोड को देख के मैन्युअली वो पर्टिकुलर एनवलप को फोल्डर में प्लेस करते थे। लेकिन अब वो सारी चीजें दैट इज शॉर्टिंग आउट द एनवलप, means we can say shorting system of the post, right, now it is done totally in an automatic manner। किस हिसाब से, एनवेलप के ऊपर बारकोड होगा, राइट, वो एक सिस्टम के अंदर जाएगा, दैट इज एक मशीन के अंदर जाएगा, उसके ऊपर से पता चलेगा, वो बारकोड स्कैन हो जाएगा। तो बारकोड स्कैन होते ही पता चल जाएगा कि ओके ये जिप कोड ये है, तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर पोस्ट पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर राउट हो जाता है, मतलब पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर ड्रॉप हो जाता है। सो दिस इज द थिंग स्टूडेंट्स कि जो चीज पहले एम्प्लॉयज करते थे, एंड ऑब्वियसली वहां पे एक एम्प्लॉय ये सारी पोस्ट को बाइफरगेट नहीं कर सकता, सारी पोस्ट को स्कैन नहीं कर सकता, सारी पोस्ट को शॉर्ट आउट नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज चाहिए। अब वही चीज ऑटोमेटिकली हो जाती है फ्रॉम द स्क्रैच टू द एंड, मीन्स स्कैनिंग द बारकोड के जिसके अंदर जिप कोड है वहां से लेके कौन से फोल्डर में वो एनवलप डालना है, वो सारी चीजें अब ये पोस्टल सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिक हो गई है। नाउ व्हाट विल बी द बेनिफिट्स ऑफ दिस सिस्टम स्टूडेंट्स, ये कंप्यूटराइज सॉर्टिंग सिस्टम है, ऑब्वियसली वो स्पीडी मैनर में वर्क करेगा, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में वो बहुत सारे एनवलप्स को स्कैन कर देगा, एंड इसकी वजह से कि बिकॉज हमारे पास टोटली अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज हुई है, हम उसका ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग भी कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो एनवेलप्स को शॉर्ट करने में मुझे 5 डेज लगते थे, अब वही एनवेलप 1 डे में शॉर्ट आउट हो जाते हैं। नाउ व्हाट विल बी द सिनेरियो, तुरंत ही जैसे ही वो पर्टिकुलर शॉर्ट आउट हो जाते हैं सारे एनवेलप, वो ट्रांसपोर्ट में चले जाएंगे, ट्रांसपोर्ट में चले जाएंगे तो आफ्टर ऑल जो रिसीवर है ऑफ दैट एनवेलप वहां पे स्पीडी मैनर में पहुंच जाएंगे, वो बंदे को स्पीडी मैनर में वो एनवेलप मिल जाएगा इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम।
सो दिस इज द थिंग स्टूडेंट्स कि हम सारी चीजें मैन्युअल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करेंगे तो वही चीज हम स्पीडी मैनर के अंदर विदाउट एनी एरर और अच्छी तरह से प्लानिंग के साथ कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम. All right. Now, this computerized information system is also known as CBIS, that is computer based information system. मतलब ऐसी information system कि जो कंप्यूटर के बेस्ड है. अब हमने देखा था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के खुद के थोड़े एलिमेंट्स है जो इनपुट लेने में, प्रोसेसिंग करने में, स्टोर करने में और उसके बाद आउटपुट जनरेट करने में काम लगते हैं. अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम के एलिमेंट्स है तो ऑब्वियसली कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के भी एलिमेंट्स होंगे, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के भी एलिमेंट्स होंगे और वो काम तो वही करेंगे, एक्टिविटीज तो वही परफॉर्म करेंगे, बट द थिंग इज दैट एलिमेंट्स यहाँ पे अलग होंगे. नाउ व्हिच आर द एलिमेंट्स? अगर हम कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो वहां पे हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, डेटाबेस होगा, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम होगी बिकॉज हमें वहां पे नेटवर्किंग करना पड़ेगा, इंटरनेट का यूज करना पड़ेगा, पीपल होंगे एंड सम प्रोसीजर होगी कि जिसका यूज करके हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एंड उसे अच्छी तरह से प्रोसेस कर सकते हैं ताकि हम डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सके, राइट? सो स्टूडेंट्स, अगर हम कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पे हमें ये सारे डिफरेंट जो भी उसके सेट ऑफ एलिमेंट्स है या फिर सेट ऑफ कंपोनेंट्स है उसके बारे में सोचना पड़ेगा एंड अलोंग विद दैट हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हम उसे किस हिसाब से कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि वो अच्छी तरह से डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट तो कर ही सके, बट अलोंग विद दैट उसे कलेक्ट भी करना है, मॉडिफाई भी करना है और उसे वो स्टोर भी करना है, राइट? फॉर एग्जांपल, कंपनी की पेरोल सिस्टम होती है, ऑर्डर एंट्री सिस्टम होती है, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम होती है. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. आपको पता है स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारी जगहों के ऊपर ये कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम देखी है. फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे फीस पे करते हो, केतन सर आपको वो फी रिसिप्ट देते हैं, अपने आप तो वो फी रिसिप्ट प्रिंटर में से जनरेट नहीं हो जाएगी, वहां पे ऐसी कोई सिस्टम होगी, राइट? मैंने वहां पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है जो मैंने ये VB.NET में ही बनाया है कि जो क्या करेगा, ये फीस मैनेज करके देगा, दैट इज अ फीस मैनेजमेंट सिस्टम जो मैंने वहां पे इंस्टॉल करके दिया है, राइट? सो केतन सर को क्या करना है, हर बार वो सारी एंट्री मैन्युअली नहीं करनी है. एक बार एंट्री हो जाती है सारे स्टूडेंट्स की, देन ओनली केतन सर हैज टू सिलेक्ट द रिकॉर्ड एंड ऑटोमेटिकली दैट फी रिसिप्ट इज जनरेटेड, right? So students, this is the significance, this is the importance of computer based information system. और students, आप लोग को तो पता ही है कि अगर हम कोई चीज मैन्युअल करने जाते हैं, राइट, तो वहां पे बहुत सारी एरर आ सकती है, लेकिन अगर हम वही चीज को कंप्यूटराइज में कन्वर्ट कर देंगे देन ऑब्वियसली वहां पे एरर नहीं आएगी, राइट? सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. नाउ, जैसे हमने ये कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन में उसके कंपोनेंट्स देखे थे, मैंने यहाँ पे डायग्राम थ्रू वो कंपोनेंट्स आप यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं. दैट इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, डेटाबेस, पीपल एंड procedures. These are the components of computer based information system, right? अब हम ये सारे components one by one डिटेल में देखते हैं. So the first component is obviously hardware. Hardware मतलब क्या? They are the computer equipments, more precise electronic gadgets के जो हमें input, process and output activities perform करने में काम लगते हैं, right? All right. So what is hardware? It is a computer equipment के जो हमें various activities को perform करने में काम लगते हैं. That is input, processing and output activities. So obviously if the activities are different तो उसके related devices भी different होंगे. So input devices कौन कौन से हैं?
ऐसे डिवाइसेस के जिसका यूज करके हम कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट दे सके, वैसे डिवाइसेस can be considered as an input devices. For example, keyboard होता है, right? Scanning devices होते हैं कि जिसका यूज करके हम ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर को इनपुट दे सके. फिर मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन होते हैं, जो चेक के ऊपर वो जो नंबर्स होते हैं उसे स्कैन करने में काम लगते हैं. एंड देयर आर मेनी डिफरेंट अदर डिवाइसेस के जिसका यूज करके हम कंप्यूटराइज सिस्टम को इनपुट दे सकते हैं. Another is processing devices. Processing devices मतलब ऐसे devices के जो हमें processing करने में काम लगते हैं. For example, CPU, that is central processing unit of your computer system, and more precise, it is divided into two another unit, that is arithmetic and logical unit and control unit. Right? So these are the processing devices के जो हम यहाँ पे consider कर सकते हैं. And along with that, अगर आपको processing के वक्त कोई चीज store करनी है, राइट तो आप वहां पे मेमोरी का भी यूज कर सकते हो. एंड द थर्ड पार्ट इज आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस के अंदर हमें ऐसे डिवाइसेस कंसीडर करने हैं कि जिसका यूज करके हम आउटपुट को डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, दैट इज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, हार्ड कॉपी आउटपुट, एंड वी कैन ऑल्सो स्टोर द आउटपुट. मीन्स स्टोरेज डिवाइसेस को भी हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा. So obviously कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है, प्रिंटर्स होते हैं, right? These are the output devices. So this is the hardware component of CBIS. Second is software component. Obviously, what is software? We can say it is a computer program. क्या करेगा वो? It will governs the operation of the computer. मतलब computers के अंदर जो भी operations perform होते हैं उसे govern करता है. Means उसे देखता है कि वो अच्छी तरह से कर रहे हैं सारे ऑपरेशंस या फिर नहीं कर रहे हैं. दैट इज द नोन एज सॉफ्टवेयर, राइट. अब ये प्रोग्राम क्या कर सकते हैं? इट विल अलाउ कंप्यूटर टू प्रोसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट. फॉर एग्जांपल पेरोल जनरेट करना है या फिर कस्टमर के बिल्स जनरेट करने हैं, राइट. इवन वो मैनेजर्स को ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिपोर्ट्स कि जिसका यूज करके मैनेजर्स ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं ताकि उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो सके, कॉस्ट रिड्यूस हो सके, एंड वी कैन आल्सो प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विस विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में इंटरनेट नहीं चल रहा है तो व्हाट यू विल डू? आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करोगे, राइट. वहां पे वो पर्टिकुलर पर्सन के साथ बात करोगे, वेल एंड गुड. बट अगर आपके पास वो पर्टिकुलर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की कोई एप्लीकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर है या फिर कोई वेबसाइट है, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी कंप्लेन वो पर्टिकुलर सिस्टम थ्रू दे सकते हो. मतलब आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दिस इज हाउ अ सॉफ्टवेयर कैन प्रोवाइड अ बेटर कस्टमर सर्विस. And you already know, आपने बहुत बार पढ़ा है that software are of two types, that is system software and application software, right? System software मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर के जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी ऑपरेशंस है और दूसरे सारे जो प्रोग्राम्स है या फिर सॉफ्टवेयर है उसे सर्व करते हैं सर्विसेज. एंड एप्लीकेशन सर्विसेज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर के जो यूजर के टास्क, यूजर को स्पेसिफिक टास्क करने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर यूजर को लेटर टाइप करना है तो वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे. अगर यूजर को नंबर्स रिलेटेड कोई कैलकुलेशन करना है तो वो एक्सेल का यूज कर सकते हैं. एंड देयर आर मेनी डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, राइट. नाउ द थर्ड इज databases. Obviously it is an organized collection of facts and information, right? ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि डेटाबेस क्या है, कि अगर हमें हमारी फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कलेक्शन के अंदर रखना है तो हम ये डेटाबेस का यूज कर सकते हैं. बिकॉज हम ये डेटाबेस के अंदर मैनी डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं. फिर वो कस्टमर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, एम्प्लॉयज रिलेटेड हो, इन्वेंट्री रिलेटेड हो, इवन कंपटीटर्स की सेल्स इंफॉर्मेशन हो, XYZ कोई भी डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन हो. बट इफ वी वांट टू ऑर्गेनाइज दोज इंफॉर्मेशन इन अ मैनर के वो हमें फ्यूचर में यूजफुल रहे, right, then we can use the component of CBIS, that is database. All right.
Now another component of CBIS is telecommunication, network and internet. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि टेलीकम्युनिकेशन व्हाट इज इट, क्यों यूज किया गया है ये पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, दैट इज CBIS के अंदर. It is a thing, or more precise we can say it is an electronic transmission of signals for communication, राइट. कम्युनिकेशन करने के लिए जो भी हम सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, and if organization want to communicate with another system which is not internal to the organization, वो सारी चीजें करने में काम लगे, वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करने में काम लगे, वो सारी प्रोसेसेस परफॉर्म करने में काम लगे, वो सारे टास्क एग्जीक्यूट करने में काम लगे, एंड ऑब्वियसली वहां पे कंप्यूटर नेटवर्क का यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल सिंपल एक मैं आपको बात बोलूं कि आप जब पहले लैब में आते थे और आप लोगों को हमें प्रिंट आउट देनी होती थी, देन व्हाट वी वर डूइंग, हम लैन थ्रू आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके सिंपल कॉपी पेस्ट कर देते थे ताकि हम वो पर्टिकुलर प्रिंटर के ऊपर से प्रिंट आउट निकाल सके. दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, राइट, कि कंप्यूटर नेटवर्क कहाँ पे यूज होता है, राइट. लाइकवाइज जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है उन्हें अगर खुद के जो भी टास्क है, जो भी प्रोसेसेस है वो बहुत ही फास्टर मैनर के अंदर, स्पीडी मैनर के अंदर एंड विथ एफिशिएंसी परफॉर्म करने हैं, तो वहां पे उन्हें टेलीकम्युनिकेशन का यूज करना पड़ेगा, राइट, ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स ट्रांसमिट कर सके, राइट. नाउ व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क क्या है और वो किस लिए यूज होता है? इफ वी वांट टू कनेक्ट कंप्यूटर्स और एनी अदर कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर आपको अपना कंप्यूटर प्रिंटर के साथ कनेक्ट करना है, राइट, या फिर कोई स्कैनर के साथ कनेक्ट करना है, या फिर दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है विद इन अ बिल्डिंग, और इट कैन बी अराउंड द कंट्री, वी कैन ऑल्सो से इट एज एन अराउंड द ग्लोब, मीन्स अराउंड द वर्ल्ड, तो हम वहां पे ये नेटवर्क एस्टैब्लिश कर सकते हैं, राइट, ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हमें करने में हेल्प करे. ऐसे तो कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी डेटा एक कंप्यूटर से, एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर नहीं जा सकते. ऑब्वियसली हमें उन्हें मीडियम देना पड़ेगा, राइट, एक पाथवे देना पड़ेगा कि जिसका यूज करके हम ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर सके. इन शॉर्ट हम डेटा को ट्रांसमिट कर सके, and that is done with the help of network. Okay, now what is internet? We can say it is a world's largest computer network कि जिसके अंदर thousands of another interconnected networks है कि जिसका यूज करके हम freely information को exchange कर सके. फॉर एग्जाम्पल आप लैब में आते थे तो आप क्या करते थे, अभी ये जो लॉकडाउन के बाद जो लैब आई, राइट, वहां पे जो स्टूडेंट्स आए थे उन्हें पता होगा कि जो भी स्टूडेंट्स लैब में आते थे उन्हें अपने प्रोग्राम्स, उन्हें अपने फाइल्स ले जाने होते थे तो वो ईमेल में अटैचमेंट के साथ ईमेल कर देते थे, राइट, ताकि वो फाइल उन्हें मिल जाए. तो ऐसे ही तो ये सारी चीजें वर्क नहीं होती है ना स्टूडेंट्स. ईमेल आप यूज करते हो, आइदर यू माइट बी यूजिंग अ जीमेल और अ याहू, जो कहीं रिमोट लोकेशन के ऊपर उसका सर्वर है, आपका कंप्यूटर यहाँ है, और आप वो ईमेल थ्रू वो अटैचमेंट डाउनलोड करोगे शायद आपके घर पे या फिर साइबर कैफे में के जहां से आप प्रिंट आउट निकाल सको, राइट. सो हाउ दिस ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड, राइट, एंड दिस कनेक्शन, राइट, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं ऐसा नेटवर्क की जिसके अंदर बहुत सारे दूसरे नेटवर्क्स इंटरकनेक्टेड है, दैट इज नोन एज इंटरनेट, right? Okay, now there are two another terms, students, that is intranet and extranet. Again I repeat, there are two another terms, that is intranet and extranet. इंट्रानेट का मीनिंग क्या होता है? सिंपल वी कैन से इंटरनल नेटवर्क, राइट, और एक्स्ट्रानेट का मीनिंग ये होता है कि ऐसा नेटवर्क कि जो सिलेक्टेड आउटसाइडर्स को वो नेटवर्क एक्सेस करने में मतलब हेल्प करे, राइट. ओके, डिटेल में अगर हम देखें देन वी कैन से कि इंट्रानेट मतलब ऐसा एक इंटरनल नेटवर्क है विच इज बेस्ड ऑन वेब टेक्नोलॉजीज, राइट, कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो पीपल है,
राइट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो पीपल है उन्हें इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में काम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कॉलेज में जो लैन है, राइट, जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में लैब के अंदर कनेक्ट करता है, या फिर हमारे कॉलेज के जो कंप्यूटर्स है उन्हें एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है ताकि हम हमारी फाइल्स एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर भेज सके, देन वी कैन से इट एज एन इंट्रानेट. So students, intranet means we can say it as an internal network, right? कि जो organization के जो people है उन्हें information exchange करने में helpful रहता है. Now what is extranet? Extranet is also the network which is based on web technologies, जो intranet भी था, but extranet के अंदर हम selected outsiders को allow करेंगे हमारा intranet को access करने में. फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स है, कस्टमर्स है, या फिर ऐसे पीपल कि जिसके पास ऑथोराइज्ड एक्सेस होता है हमारे इंट्रानेट के रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए, राइट? ऐसे नेटवर्क को हम एक्स्ट्रानेट कहेंगे, राइट? Again I repeat, extranet मतलब ऐसा नेटवर्क के जो obviously it is based on web technologies and it will allow selected outsiders या फिर more precise we can say authorized people के जो इंट्रानेट को एक्सेस कर सके. फॉर एग्जाम्पल, सप्लायर्स होते हैं, उन्हें भी हम पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस करने में परमिशन दे सकते हैं, राइट? या फिर कस्टमर असिस्टेंस हमें प्रोवाइड करना है तो वहां पे भी हम कोई पार्ट हमारी कंपनी के जो नेटवर्क का है वो एक्सेस करने में उन्हें एनेबल कर सकते हैं. सो दीज आर द मैनी डिफरेंट थिंग्स के जो एक्स्ट्रानेट का यूज करके हम प्रोवाइड कर सकते हैं. Okay, now to another component of CBIS are people and procedure. Obviously people are also an important element of CBIS, right? So information system के अंदर कौन कौन से different types के people होते हैं? So the people who manages, run, प्रोग्राम एंड मेंटेन द सिस्टम. एक ऐसे पीपल होते हैं स्टूडेंट्स, राइट, कि जो आपके सिस्टम को मैनेज करने के लिए, रन करने के लिए, उसे प्रोग्राम करने के लिए, दैट इज कस्टमाइज करने के लिए, या फिर रीप्रोग्राम करने के लिए, या फिर उसके डेवलप करने के लिए और मेंटेन करने के लिए काम आते हैं. दैट इज वन कैटेगरी ऑफ पीपल कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर हमें कंसीडर करना है. नाउ अनदर टाइप ऑफ पीपल आर द यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट? जो इंफॉर्मेशन सिस्टम हम डेवलप करके उन्हें देते हैं वो उन्हें सिर्फ यूज करते हैं और उन्हें जो रिजल्ट चाहिए, मोर प्रिसाइज उन्हें जो आउटपुट चाहिए या फिर आउटकम चाहिए, वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करके जनरेट कर सकते हैं. So we can say that people component of this CBIS can be divided into two types या फिर two categories. एक कि जो सिस्टम को मेंटेन करेगा, डेवलप करेगा, बनाएगा, एंड सेकेंड कि जो उन्हें यूज करेगा, राइट? एंड अनदर कंपोनेंट इज प्रोसीजर. ऑब्वियसली प्रोसीजर के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें कंसिडर करनी है? रूल्स के जो हम डिफाइन करेंगे, स्ट्रेटेजीज जो हम बनाएंगे, पॉलिसीज होती है, दैट इज पब्लिक पॉलिसी भी हो सकती है, लीगल पॉलिसीज भी हो सकती है, राइट? मेथड्स जो हम डिफाइन करेंगे, right? These are all the things which are included as a procedure in CBIS, that is computer based information system. For example, ऐसी प्रोसीजर होती है कि जो डिस्क्राइब करती है कि प्रोग्राम कब रन करना है, राइट? कोई कोई प्रोसीजर ऐसी भी होती है कि जो डिफाइन करेगा कि कौन ये पर्टिकुलर डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, मींस वो अथॉरिटी चेक करेगा, ऑथेंटिकेशन चेक करेगा, राइट? सो देयर आर मेनी डिफरेंट प्रोसीजर्स. ऐसा नहीं है कि ओके रूल्स डिफाइन कर दिए, कंस्ट्रेंट्स डिफाइन कर दिए, काम खत्म. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. प्रोसीजर के अंदर हम बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स हम डिफाइन कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, सिंपल अगर मुझे ये डिफाइन करना है कि कब ये प्रोग्राम रन होगा, देन ऑब्वियसली हमें वहां पे प्रोसीजर मतलब प्रोसीजर कंसीडर करनी पड़ेगी, राइट? ऐसा तो नहीं है कि सारे प्रोग्राम्स हर बार रन होंगे, राइट? अनदर थिंग, कौन पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करेगा,
कौन पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करेगा, कौन पर्टिकुलर रिपोर्ट जनरेट कर सकता है, स्टूडेंट्स हम वो भी डिफाइन कर सकते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो डिफाइंड विद इन द प्रोसीजर ऑफ CBIS, right? So students, these are the components of computer based information system कि जो हमें इनपुट लेने में, मैनिपुलेट करने में, स्टोर करने में और प्रोसेस करने में काम लगता है, राइट? और हम डेटा को इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं, राइट? सो द कंपोनेंट्स आर प्रोसीजर, पीपल, देन टेलीकम्युनिकेशन, नेटवर्क, इंट्रानेट, उसके अंदर हमें इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट कंसीडर करना है, देन इट इज डेटाबेसेस, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, right? So these are the components of CBIS.